I'll request everyone to settle down. This was a critical part of our list as well, Civility was a critical parameter of putting this list together. And we have seen television being called noisy and all of that, but I think it's no less on the other side, where when party spokespersons come and represent their individual parties, we see there's a certain flavor which is very masala kind of a thing. True. How can we make this discourse civil? Will people watch civil discourse at all, or do we have to bear with this? So first of all, thank you, Ruhail, for this conversation. Thank you, the entire team, Anurag ji. I don't know what my ranking would be, but I just hope रिश्ते बने रहें हमारे. मैंने अनुराग जी को एक veiled thread दे दिया है. So the journey from news to noise, what it's become now, has been a very interesting one. I was an anchor with Star Network, and my job was to conduct these interviews. I find myself on the other side now, which is at the answering end and not the questioning end. And I feel there has been a complete and a steady deterioration. अब वो है नवाज देवबंदी का शेर, देने को दे सकता था मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती. So आपकी तहजीब कितना आपको इजाज़त देती है, नहीं देती है, आपकी तरबियत. थोड़ा क्लोज, नज़दीक. मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी. अच्छा. तो अब ये है कि मेरी जो परवरिश है, मेरी जो तरबियत है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मुझे कितना इजाज़त देता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंडिविजुअल्स तय करते हैं. So I think but I don't think there's any party which would encourage you to chart that course. However, desperate times call for desperate measures, and I've seen a lot of absolutely insane desperation in the way some spokespersons, some anchors also conduct themselves, and that has to be called out. First of all, I would like to say this whole ban, this second emergency, this quasi-emergency has to be, and this cancel culture is a mark of sore losers, and I think that is something we should discuss, because it is not fair. It's like saying, and I've been an anchor, so I know just how establishments work and how the ecosystems are. And nobody can say, you can blame a part of media for being too biased, but there's another part of media which is equally biased. So to single out a few people because they ask tough questions, not because they're part of the party ethos, because maybe they genuinely click with the party when it comes to their own personal interests or views on nationalism, 370, this whole politics of appeasement, and where do you stand? Maybe they feel strongly about it, which is why they say what they say. And they would, so I think it's very unfair to blame the anchors. And I think this whole boycott and cancel culture must be cancelled. Then I talked about civility. अब दो किस्म के ग्रुप्स हैं जिससे मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि मैं डरती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही, मेरे ख्याल से मैदान जंग में बहुत ज़्यादा ही जंगें लड़ी हैं, तो पर मुझे अच्छा नहीं लगता. एक घबराहट होती है कि बदतहजीबी होगी, हम उस तरह जाएंगे. तो वो दो ग्रुप्स हैं, और मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहूँगी, ये हेडलाइन के लायक है. वो एक तो ग्रुप है कि भाई जो हमारे मौलाना साहब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने मौजू पर बहुत बात की है, तो बहुत कुछ वहाँ सुनने को मिलता है जिसको मैं जो नाकाबिले बर्दाश्त समझती हूँ, और मैंने बहुत कुछ सुना है. दूसरा जो फीमेल स्पोक्सपर्सन्स हैं और पार्टीज़ की, मुझे मैं क्या बताऊँ, लास्ट फ्यू डेज हैव बीन टेरिबल फॉर मी, बिकॉज दे जस्ट डीजेनरेट and disintegrate into a level which we need not go down to. और मुझे लगता है कि कुछ महिला हमारी प्रवक्ताएं हैं और पार्टियों की जो सच में एक तो हमें हमेशा वुमन कार्ड नहीं खेलना चाहिए. मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं किया है, और मैंने देखा है उनको बाकी पैनलिस्ट को बोलते हुए ये सब भी कि भाई of course I'm a woman, you're doing that. So I think that is one thing. And also कि we compete, we are equals, we are not men or women. हम लोग जैसे परमात्मा के आगे सब आत्मा है ना, एक से, वैसे टीवी डिबेट्स में भी हैं. वहाँ पे तो हमारी हाजिर जवाबी पर, हमारी याददाश्त पर, हमारी राजनीतिक समझ पर बातचीत होगी, जाहिर सी बात है. लेकिन उसमें भी हम अगर जेंडर को ले आएंगे
और वो करेंगे, मुझे उससे बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि मैं बतौर बहैसियत औरत एंकर एक ज़माने की अविनाश जी के चैनल की फर्स्ट एंकर रही अविनाश जी. आई वॉज अ डेब्यू एंकर ऑफ स्टार नेटवर्क. So I can tell you that, and I think that is something that I see happening a lot of, and I wanted to Right. say it, and this is something new because this I have not discussed before, but it's an absolutely abominable level. मतलब इतना स्तर इतना गिर गया है, और मतलब बहुत अफसोस होता है मुझे कि मेरी एक और महिला कोलीग जो दूसरी पार्टी से है, जो बात कर रही है, वो इस कदर बद तहजीबी पर उतर आएगी, ये वाकई में बहुत तकलीफ़देह है मेरे लिए. और मैं उन्हीं पार्टी के जो मेल प्रवक्ता हैं, मैं प्रेफर करती हूँ उनसे बातचीत करने में. मुझे लगता है क्योंकि वो इतनी ज़ाती पर्सनल और वो हो जाता है. सो आई थिंक you'll only be a good spokesperson if you know your facts, not if you indulge in personal allegations. You've lost the debate when you don't have logic or facts to back you, and when you have to resort to making personal attacks and allegations. Right. I think that is a sign of losing. So I do feel bad for them. बट ओवरऑल, एंड यू नो, जब हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए मैं गाली नहीं दूंगी आपको, आप मुझे गाली दे देंगे, जैसे मैंने कहा मेरी तहजीब, पर होता क्या है, यू विशिएट, एक पूरा माहौल, पूरा स्तर गिर जाता है, एक पतन होता है, जो लोग देख रहे हैं. अब ऐसी कोई बातचीत हो जो लोग सुन रहे हों, जिससे इजाफा हो रहा हो, ना सिर्फ ज्ञान का बल्कि समझ का, और आपकी आप एक एनोबलिंग एक्सपीरियंस हो, दैट यू गो आउट फीलिंग हमने कुछ सीखा है इससे, कि दो पक्ष कुछ कह रहे हैं, वो एनोबलिंग नहीं हो पा रही है. Right. मैं तो हमेशा, सुधांशु भाई आपके लिए नंबर 1 पिछली बार थे, मेरे लिए तो हमेशा नंबर 1 रहेंगे, और रहे थे और रहेंगे, रियली एंड अराउंड, बिकॉज जब सुधांशु जी कुछ बोलते हैं तो एक ज्ञान वर्धन होता है, एक इजाफा होता है, जो मैं अब तक जानती थी उससे ज़्यादा मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ. तो ये क्या हुआ, क्या किसी डिबेट ने ये कर पाया, ये कि लोग ज़्यादा समझते हैं उस मौजू के बारे में, उस विषय के बारे में. शाजिया जी, विपक्ष के बारे में बोल दो थोड़ा. बोलेंगे. अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं. we'll get into this. So one, it's very important that these two categories, women spokespersons of other parties, and all the Maulanas and ulema who have handled a lot too many times. Right. So these are two categories I would not enjoy being a part of. We've seen कि एंकर्स कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ बोलें कि थोड़ा प्रोवोक हो. तो ऐसी सिचुएशन में how do you, I mean, are there examples जहां आपने चीज़ें you tried to be कि मैं सिविल रहूँगी, इन्होंने मुझे प्रोवोक किया है, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं. How do you hold yourself back from kind of कि मैं ऐसा ना उनमें engage ना करूँ वैसे same word to word? I'll be very honest with you. I have been very provoked. I have felt very angry because I know where the anchor is coming from. So you see how news is done. There's a news agenda. And there's an agenda setting that happens. People who are part of the news networks know that. There's an input desk and output desk. There's also the editorial team. So we know how exactly news is done. And what is the agenda setting one? What are the choices of people you invite on your debate? How much weightage are you giving to each side? So all these are part of being partisan or not. So things are done in a very smart way. Certain channels would call spokespersons of both the sides, and they would have an independent panelist who is not independent. I mean, we know some panelists would not be independent. So it is giving weightage to one. So when I know an anchor is doing it deliberately, and that there is just pure hatred and dislike for your party, and maybe political interest, I call them out. I think it's important to call a spade. And I say, no, you're not being fair. विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अब अनुराग जी बैठेंगे मेरे सामने प्रियंका कक्कड़ बैठेंगी आम आदमी पार्टी की, सपा बसपा से कोई और बैठेगा, दूसरे भदौरिया जी बैठेंगे. अब आप बताइए, आप एंकर हैं रुहेल साहब, 5 लोग इधर बैठे हैं, भाजपा की सब मुखालफत कर रहे हैं, मैं भाजपा की तरफ से बोल रही हूँ, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बात कर रही हूँ. तो आप बताइए, जो वेटेज होना चाहिए वो सबको 3-3 मिनट बराबर का होना चाहिए, क्योंकि 2 ही पक्ष हैं यहाँ पे. तो वो लोग सब एक बात कर रहे हैं और मैं एक बात कर रही हूँ. तो ये है. तो आई कॉल आउट, आई वांट माय टाइम, आई वांट, बट यस, civility cannot be, civility has been a big casualty. Right. So this is the headline and also, it's very, right? Yeah, civility is a big casualty and we need to rescue it. उसे बचाना पड़ेगा भाई. Right. मेरा आखिरी सवाल, then we'll take couple of questions कि बाकी जो आपके ऑपोजिशन से हैं, किनको आप मोस्ट सिविल बोलेंगे? 2-3 नाम. बड़ा मुश्किल कर दिया ये सवाल. तो सबसे ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी मुहज़्ज़ब लोग हैं और
आलोक जी हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरी उससे कभी तकरार इस तरह की नहीं हुई है। वो तो हमारी पार्टी की है ना। अनुराग का नाम मैं लेना भी चाहूँ तो लूंगी नहीं, क्योंकि वो सच नहीं होगा। ओके, देखिए सच पर हमेशा रहना चाहिए ना, तो थोड़ा ठीक इतना है, भी फिसल नहीं सकते। और तो मेरे ख्याल से ऐसे, पर वो नामों में बहुत कमी आ बहुत गई है। कम है, हाँ, इतना एक डेस्परेशन है टू प्रूव अ पॉइंट एंड टू बी आउट देयर एंड टू कुचलो समवन एल्स, जाकर आपको बस एक प्रहार और कुचलने का माहौल है, उससे मतलब। राइट। शाजिया जी, मैं as I watch this space, what do you do when you are pitted against an anchor, which happens most times, happens to all? They have a premeditated way of doing. Some, they will, as Javi said, that they will instigate you and they will expect. How do you deal with that? And again, how do you prepare for technical aspects? Because Sudhanshu ji does well because, he has so much content. So how do you get that content beyond your presence and, beyond the fact that you are an anchor yourself, so you can carry that? How do you prepare? And how do you deal with somebody who has a certain predetermined way of engaging with you, which may not be good? So yes, I've had my share of biased anchors. मेरा एक पुराना कोलीग, again I welcome to अविनाश, संदीप चौधरी, हम लोग ने साथ में देश विदेश प्रोग्राम बहुत सालों तक किया है. And he again was has been an anchor with News 24, now with ABP. And I know when I go to a show of Sandeep Chaudhary, and I'm giving an example, and I can take those liberties because Sandeep and I are old friends and we were co-anchors. I know that more than any spokesperson, it will be Sandeep who will be grilling me. So I know that. So I'm prepared for the fact that this anchor comes from a certain mind space and the bandwidth. So I have facts and I say, because you're asking this, why don't you say that? So मुझे पता है और तो कि वो क्या सवाल पूछेंगे. And I think anchors को भी इतना ज़्यादा अपने को वो नहीं कर देना चाहिए predictable कि spokesperson लाजमी तौर पर prepare हो क्या है. So that is one. And the second thing is I think nothing beats facts. और देखिए सुधांशु जी का अपना भाव है बात करने का, अपनी भाषा शैली है उनकी, अनिल अपने अलग से बात करेंगे, चारू अपनी अलग बात करेंगी, अनुराग जी का अपना स्टाइल है. तो हम लोग कोई और नहीं बन सकते, क्लोन बनने की ज़रूरत नहीं है. ये जो होमोजेनाइजेशन लोग सोचते हैं ना, एंकर्स का भी हो रहा है होमोजेनाइजेशन, स्पोक्स पर्सन्स का भी हो रहा है, सब एक जैसे हो जाए, नहीं. आपको आपकी अपनी एक पिच पर आपको खेलना है. आप में क्या अच्छा है, आप क्या लाते हैं टेबल पर. सुधांशु जी जो लाते हैं ज्ञान वो अलग किस्म का है, उनकी जो समझ वो है वो उसको लाएंगे. मैं क्या ला सकती हूँ जो उनसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मैं हूँ वो हैं. लेकिन उससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है डिबेट का, लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या कि, और जो गिव एंड टेक प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, व्यूज़ एक्सचेंज है जो हो रहा है इस वक्त एक मौजूदा सिचुएशन में, वो बेहतर कैसे होगा. इजाफा, वैल्यू एडिशन, हाउ डू आई एड वैल्यू, हाउ आई चारू प्रज्ञा, आई शाजिया इल्मी, हाउ आई एम एडिंग वैल्यू, नॉट क्लोनिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर देखें पिछले 20 साल 23 साल से एक्सचेंज फॉर मीडिया है, तो मैं कह सकता हूँ 22 साल से मीडिया पे लिख रहे हैं. बहुत सारे स्पोक्स पर्सन एमपी बन गए, सुधांशु जी ऑलरेडी एमपी हैं. तो क्या आपकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है? जैसे मेरा अंदेशा है कि जयवीर पंजाब से लड़ेंगे 2024 में, मैं ऐसा मेरा अंदेशा है. मैं कोई ना पार्टी में हूँ ना मैं मेरे कोई डिसीजन लड़ सकते हैं वो. तो आपका भी कुछ ऐसा एम्बिशन है एमपी बनने का? देखिए मैं उन एंकर्स में से थी जो एक जज्बाती मोमेंट में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अन्ना हज़ारे आंदोलन में एक अदना सी सिपाही बनकर रह गई और रही बहुत साल तक, और फिर फाउंडर बनी आम आदमी पार्टी की. लेकिन तब तक किसी ने आम आदमी पार्टी का ख्वाब भी नहीं देखा था, वो अन्ना हज़ारे आंदोलन था. तो मैं एक कहते हैं ना, बिटवीन आइडियलिज्म एंड स्टूपिडिटी देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन. तो मैंने वो लाइन को कई बार पार किया. एक बहुत बारीक सी एक लकीर है कि आप आदर्शवाद और बेवकूफ़ी, तो मैं बेवकूफ़ी को बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग आइडियलिज्म कहेंगे, तो मैं उन लोगों में से हूँ कि कोई भी प्लान जो मैंने ज़िंदगी में बनाया है 20 साल से लेकर 25 साल है उससे पहले, वो कभी पूरा नहीं हुआ. तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं बनाती. आपका प्लान क्या है वो तो बता सकती हैं, वो तो आपको पता है. मेरा खुद के लिए प्लान नहीं है, मेरी एक सोच है. मैं चाहती हूँ कि मैं वो एक कैटलिस्ट हूँ या फोर्स हूँ जिसके आसपास बदलाव हो. जो ज़िंदगी जिस तरह से मैंने बिताई है या मेरी बहनों ने बिताई है या मेरे जो मेरे टच पॉइंट्स हैं जस्टिस को लेकर, वो बेहतर हों. और वो मैं काम करूँगी मुसलसल तौर पर, बतौर एंकर, बतौर एक्टिविस्ट, बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर नेता
और उसके अलग अलग लेवल्स हैं। तो एक कंटेंट और फॉर्म में फ़र्क होता है। एक कंटेंट होता है आप क्या हैं, एक अलग अलग तरीके होते हैं कहने के, आपकी मैसेज कैसे जा रही है, ट्विटर के ज़रिए भी जा रही है, फेसबुक में भी जा रही है, बोल भी रहे हैं, लेकिन आप मैं क्या इसलिए हैं? पूछ रहा हूँ, महिला है और आपकी पार्टी अमूमन एक तो नए चेहरे करेगी जो मेरी समझ है, अगेन एज आई सेड, आई से एज एन आउटसाइडर, आई हैव नो क्लू। सेकंड, मोर women will be fielded, so you have a बिल्कुल, chance. बिल्कुल, of course have a great chance, and I believe that. Oh, And आपके अंदर Thank you. और चांस, मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रही हूँ, sky is the limit for each one of us. Thank you, thank नहीं you. नहीं, मैं अपने मैं सुनिए, मैं सिर्फ एक आप जो हैं, मैं और बड़ा होना चाह रही हूँ, मैं आसमान बनना चाह रही हूँ, और आप मुझे एक बिल्डिंग तक सीमित कर रहे हैं। मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो आई सी माई सेल्फ एज एनर्जी, एज ऊर्जा। तो पार्लियामेंट में भी हम सजाएंगे, हम यहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे हैं, हम किसी से कम नहीं है, कहीं पर भी हम हैं, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत ही अच्छी जगह पर हम हैं। God bless मैं you. आपको God bless बहुत ही you. सशक्त हर We're वक्त just moving महसूस close to करती हूँ। the unveiling part, and we have a couple of debates. So thank you so much for joining. Thank us. you, Shazia ji.